کہ جب خدا نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تھا تو خداوند نے بہت سارے نبی پیغمبر اپنے لیے الگ کیے، اور خداوند وقفاً ان نبیوں کو پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا اختیار دے کر، لیکن ان سے وہ کام نہ ہو سکا جو اس نے ربنا یسوع سے کروانا تھا۔ جب یسوع مسیح کو خداوند نے حکم کیا اور خداوند یسوع مسیح نے اسے قبول کیا، تو یسوع مسیح صرف انسانی بدن میں نہیں آئے ہیں بلکہ قدرت والا اختیار لے کر اپنے آمد ثانی کی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے وہ اختیار جو باپ کی طرف سے بیٹے کو ملتا ہے اسے بخش دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا ہے، انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم سانپ اور بچھوں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ یسوع مسیح ہمیں اختیاری بناتا ہے، یسوع مسیح ہمیں اختیار بخشتا ہے، اور یہ جو قوتیں ہیں، یسوع مسیح کے شاگردوں نے خلوت میں جا کے پوچھا، اے استاد، اے نیک استاد، ہمیں بتا کہ یہ قوت، یہ ابلیسی تاثیریں ہم سے کیوں نہیں نکل سکی؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری بے اختیاری کی وجہ سے، اس لیے کہ تم لوگ دعا میں مضبوط نہیں ہو۔ جب انسان خدا میں یا دعا میں یا کلام میں مضبوط نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو خدا کے آگے پرزینٹ نہیں کرتا، خدا اسے کبھی اختیاری نہیں بناتا ہے۔ اور شاگرد بھی اس بات سے حیران تھے، پریشان تھے، جب تک یسوع مسیح نے انہیں اختیار نہیں بخشا تھا تب تک وہ ڈاواں ڈول تھے اور یسوع مسیح سے گلہ کرتے رہے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتے ہیں، ہم کیوں نہیں بدروہوں کو نکالتے ہیں، ہمارے سے کیوں نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو ناپاک سپرٹ ہے دعا کے سوا اور کسی بات سے نہیں نکلتی۔ دعا، جب انسان کی دعا ان پاور ہوتی ہے تو ایٹومیٹک ہی روح القدس اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور روح القدس آنے والے بھید کی باتیں اس انسان پر ظاہر کرتا ہے، اور جب روح القدس آ جاتا ہے تو باپ خداوند خدا جو ہے، یسوع بادشاہ جو ہے، وہ اس انسان کو اختیاری بنا دیتا ہے۔ اختیاری تب بندہ بنتا ہے جب وہ حکموں پر عمل کرتا ہے اور دعا میں اور کلام میں مسرور رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی دوسروں لوگوں کی طرح نہیں بناتا، بلکہ جیسی خداوند چاہتا ہے ویسے وہ اپنی زندگی کو جب ڈھال لیتا ہے تب خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ادروائز میں دیکھتی ہوں کہ لوگ چاہے وہ شاگرد ہوں، چاہے وہ عام کلیسیا کے لوگ ہیں، اور صرف وہ کہتے ہیں ہم دعا بڑی کرتے ہیں، ہم دعا بڑی کرتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو تو خداوند نے روح القدس بھی دے دیا ہے، آپ کے اندر تو اختیار بھی ہے، پھر یہ ناپاک سپرٹ، یہ معاملات آپ سے حل کیوں نہیں ہوتے؟ حل کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے کہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنا اختیار بخشا ہے، خداوند یسوع مسیح نے روح القدس ہمیں بخشا ہے، وہ اختیار ہمارے پاس ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیج کی مثال تو سنی ہوگی کہ کچھ بیج جھاڑیوں میں گرے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ خدا کی ہیکل میں آتے ہیں، اور جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور فی الفور اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں دنیا کی فکریں، مصیبتیں، پریشانیاں، جو بیج ان کے اندر گرا ہوتا ہے وہ فکریں، وہ پریشانیاں اسے دبا دیتی ہیں، وہ بیج مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے روح القدس پا کر بھی لوگ اختیاری نہیں ہیں، روح القدس کی نعمتیں بھی حاصل کر لوگ اختیاری نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان خدا پر توکل کرتا ہے، جیسے پطرس نے انسان پر توکل کیا، یسوع مسیح کے کہنے پر پانی پر چلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے نظر کی کہ پانی ہے اور میں کہیں ڈوب نہ جاؤں تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، بار بار ہمیں اختیار دیتا ہے، بار بار ہمیں چنتا ہے، بار بار ہمیں برکت دیتا ہے، اور وہ دنیا سے ہمیں الگ سیپریٹ کرتا ہے، لیکن انسان
अपनी ही फिक्रों में दबा रहता है। जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं ना बनेंगे, इख्तियार से कभी भी बदरूह को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो निकल जाए, या मुसीबतों को, परेशानियों को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों को छूट जाए। इसी बात का तो खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है, इसी बात का तो हुक्म किया है कि जब तुम तरह तरह के आज़माइशों में पड़ो तो इसको कमाल जानकर खुशी की बात समझना कि तुम्हारी आजमाइश तुम्हारे लिए तरक्की का बाइस है, तुम्हारे लिए बहाली है। लेकिन लोग जब आजमाइश आती है, मुश्किलात बर्पा होती है, लोग गिर जाते हैं, अब मुझ पे ये हो गया है, अब मुझ पे ये हो गया है। और खुदा का कलाम जो है वो ताया हुआ है, उनके अंदर जाता ज़रूर है, उस वक़्त गर्म ज़रूर होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अगर मैं पूछूं कि आपने संडे को कौन सा मैसेज सुना था, या पिछली जुमेरात कौन सा मैसेज था, आपको याद है? नहीं याद। वजह यह है कि जो आपके घरों के मामलात हैं, आपका ज़हन उधर लगा रहता है, खुदा की तरफ नहीं है। जब तक आप खुदा को खुशी के साथ कबूल नहीं करेंगे, उसके कलाम को, खुदा आपको इख्तियारी नहीं बनाएगा। जब कोई खुशी के साथ खुदा का काम करता है या खुदा के कलाम को रिसीव करता है खुशी के साथ, उसकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत जारी और सारी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में खुदा काम करना शुरू हो जाता है कि इसने मुझे खुशी के साथ कबूल किया है। और जो लोग खुशी के साथ यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं, वही अब्दुल अलबाद ज़िंदगी का भी इख्तियार हासिल करेंगे, वही इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे यीशु मसीह की दाहिनी तरफ बैठकर, वही लोग करेंगे। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ लोगों में कि लोगों की मुश्किलातें बढ़ती जाती हैं। जितनी मर्जी वो करें, हम बड़ी दुआ करते हैं, हम घरों में इतना टाइम बनाते हैं, हमने घंटा दुआ की, हमने 2 घंटे दुआ की। तो मेरी बात सुनो, आपकी 2 घंटे दुआ से आपकी सर की दर्द क्यों नहीं गई? आपकी सर की दर्द क्यों नहीं गई? आपकी बीमारी क्यों नहीं ख़त्म हुई? आपकी 2 घंटे की दुआ ने क्या किया है? इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आग मांगने से कुछ नहीं होता। दिल से, रूह से और ईमान से, जब आप दिल से, रूह से, ईमान से खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकते हैं सच्चाई के साथ, तो फिर आपको इतनी स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ कह ही देते हैं तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर देता है। सिर्फ कह ही देने से खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम इब्लीस पर गालिब आएँ। खुदा के लोग किसी भी नेमत और बरकत से गाफिल ना रहें, बल्कि खुदा की बरकतों से सैर और रसूदा होते चले जाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वक्ती तौर पर दुआ करते हैं, वक्ती तौर पर खुदा के घर में आ जाते हैं। क्या है जी, हमें मसला है, क्या है जी, हमें प्रॉब्लम है, क्या है जी, हम बीमार हैं, इस वजह से हम खुदा के पास आ जाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दूँ। खुदावन ये चाहता है कि हर वक्त, हर जगह पर तुम मुस्तहित रहो, और जो तुम कह दो मैं आसमान पर कर दूंगा, जो तुम मुझसे कहोगे। अब लोग कहते हैं कि हम दुआ तो करते हैं, हम तो कहते हैं, लेकिन कहते किसे हैं? आपको पता है कि खुदा बाप ने इसका इख्तियार दिया है कि जो दुआ किसके नाम से मांगोगे? किसके नाम से? बाकी तो बाप कह रहे। जो दुआ मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तुम मांगोगे या चाहोगे कि खुदावन हमारे लिए कर, तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से कोई दुआ मांगते हैं तो खुदावन यीशु मसीह का इख्तियार हमारे अंदर आ जाता है। और वो इख्तियार कब आता है? जब हम ईमान के साथ भर कर उस दुआ को मांगते हैं, फिर खुदा हमें इख्तियारी बना देता है। अदरवाइज मुश्किल है। जितने भी शागिर्द हुए,
यसु मसीह ने जब उन्हें इख्तियार दे दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा नहीं खुदावन हमसे अब ये नहीं होता, हमारी बीवियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हम तो अभी कुंवारे हैं, हमारे खेत हैं, हमारे कारोबार हैं, हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। ड्रामेबाजी नहीं की उन्होंने, ड्रामेबाजी की नहीं की। जब्दी के दोनों बेटों ने क्या किया, वो अपने बाप के साथ क्या कर रहे थे, कश्ती की मरम्मत कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब उन्हें बुलाया तो कश्ती को और अपने बाप को दोनों को छोड़कर किसके पीछे गए, यीशु मसीह के पीछे चले गए। जब यीशु मसीह किसी को बुलाता है तो वो कहता है कि सब कुछ। अब यीशु मसीह के पास एक नौजवान आया, उसने कहा ए नेक उस्ताद, मुझे बता कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, नेक सिर्फ खुदा है। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, अगर तू आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहता है तो 10 हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि ये मैं बचपन ही से खुदा के 10 हुक्मों पर अमल करता आया हूँ। यीशु मसीह ने उसकी तरफ निगाह की तो यीशु मसीह ने देखा कि इसके अंदर कुछ कमी है। यीशु मसीह ने कहा कि आज भी तुझ में कमी है। तो उसने कहा क्या है। यीशु मसीह ने कहा कि तू ऐसा कर, अपना सारा माल बेचकर गरीबों में दे दे और मेरे पीछे आकर हो ले और आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। तो वो जो नौजवान था वो बड़ा अमीर था, बड़ा पैसे वाला था, उसे कोई भी हाजत नहीं थी कि वो कंगाल हो जाए। लेकिन बादशाही हासिल करना या आसमान का खजाना हासिल करना ये मुफ्त नहीं होता है। अपना मालो सबाब बेच और मेरे पीछे हो ले। लेकिन कोई ऐसा कर सकता है? वो तो ऐसा गमगीन हुआ, ऐसा नाराज हुआ कि चुप करके चला गया। वैसे उसे आसमान की बादशाही चाहिए थी और वो 10 हुक्मों पे अमल भी कर रहा था, शायद अमीर था और सारे हुक्मों को मान भी रहा था, इस वजह से खुदा ने उसे माल दौलत बख्श दी। लेकिन जब बारी आती है कुर्बानी की खुदा के साथ कि हम अपनी कुर्बानी कैसे चढ़ाएं, उस वक़्त लोग हिल जाते हैं, लोग डर जाते हैं। और जो हर बंदा, चाहे वो घर में बैठा है, वो घर में सोया रहता है, और चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, हर शख्स को एक ही जस्तजू है, खुदावन यीशु मसीह मुझे इख्तियारी बना दे, खुदावन यीशु मसीह मुझे ऐसा कर दे, मुझे ज़हमत ना हो कि मैं हैकल में चला जाऊँ, मुझे ज़हमत ना हो कि मैं उठ के दुआ कर लूँ, मैं सिर्फ लेटे लेटे कह दूँ तो यीशु मसीह दे दे, मैं लेटे लेटे कह दूँ तो मेरे मुँह में रोटी भी आ जाए। ऐसी ज़हमत वाले लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम चर्च में क्यों जाएं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारी छुट्टी नहीं हमें मिलती है, लेकिन खुदावन तू जानता है, तू मुझे दे दे, तू मुझे दे, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, मुझे इख्तियारी बना दे, मुझे इख्तियार बख्श दे, तू मुझे देता जा, तो बस ठीक है, सब बल्ले बल्ले है। फिर लोग कहेंगे कि ना चंगा कि ना नेक, ये कहन तो देखो सब कुछ हो जाता है। वो क्यों नेक है, क्यों चंगा है, उसके कारोबार बहुत है, इसलिए वो नेक भी और चंगा भी है। जब किसी को आजमाना हो ना, खुदा ने जब भी किसी की आजमाइश की है, उसे एक अल्फाज कहा है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। यीशु मसीह जब कहीं लेने देने की बात करते हैं ना, उस वक़्त लोग पीछे चले जाते हैं कि यीशु मसीह ऐ मेरा है तो जेड़ा तेरा वो भी मेरा है, जेड़ा तेरे को है वो भी मैनू दे दे, तो जेड़ा मेरा हो तो है मेरा। उस वजह से लोगों के पास इख्तियार जो यीशु मसीह ने देना चाहता है वो नहीं देता है। हर तरह से हमारी आजमाइश होती है, मालो दौलत से भी हमारी आजमाइश होती है, बच्चों से भी हमारी आजमाइश होती है, बीमारियों से हमारी आजमाइश होती है, तकलीफ़ों से हमारी आजमाइश होती है। लेकिन आज के लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन से लेना जानते हैं, खुदावन को देना नहीं जानते हैं। इस वजह से ख़ास तौर पर मसीहत में गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है और कम इख्तियारी भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि ईमान नहीं है। जब तक हम ईमान यीशु मसीह पर नहीं लेके आएंगे, हमारी मुश्किलातें जाएंगी, हमारी परेशानी जाएगी, हमारी बीमारी जाएगी। तो उस वक़्त लोग यीशु मसीह को कहते थे, ऐ खुदावन यीशु, ऐ उस्ताद, तू कह ही दे तो मेरा नौकर फालज वाला शिफा पा जाएगा। वो गैर कौम के लोग थे, वो कहते तू कह ही दे तो ये शिफा पा जाएगा। आज यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह आ जाता है, लोगों को रूहानी आंखें भी खुली है, नजर भी आ रहा है कि खुदा यीशु मसीह आ चुका है, शिफा नहीं हो रही, शिफा नहीं हो रही। वजह यह है कि तुम्हारी कम इख्तियारी की वजह से अब दुआ तो हो नहीं रही। यीशु मसीह की हुजूरी है, अनाइंटिंग है, सब कुछ लोगों को महसूस हो रहा है, लेकिन खुदावन के आगे गिरिया सारी नहीं हो रही है, खुदावन से मांग नहीं रहे हैं, बस यही कह रहे अच्छा यीशु तू तो जानने, तुम मैंने शिफा दे दे। यीशु मसीह ने कहा दिया रोटियां थोड़ी तुम पका दे, यीशु मसीह शिफा दे दे। यीशु मसीह के कौन से काम आप करते हो कि यीशु मसीह बगैर कहे आपके काम कर दे? ये भी तो देखे ना कि हमने कौन से काम हैं जो यीशु मसीह के किए हैं, कौन से किए हैं। दसो भैनों तो सारियां बैठियां जी, किन्ने के यीशु की मनादी की जे फलां जगह ते जाके दसिया नहीं खुदावन च बड़ी कुदरत हैगी, खुदावन इंज कर सकना, तुसी चर्च आया करो, तुसी कलाम पढ़ो, तुसी दुआ करो। कभी किसी ने किए ये काम? नहीं किए। तो खुदावन से इख्तियार चाहिए, बदरूहों का इख्तियार भी मुझे मिलना चाहिए, बदरूहों का इख्तियार मेरे पास हो, शिफा का मौज़ात की कुदरत मेरे पास होनी चाहिए। मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं, तो इख्तियार यीशु मसीह ये आपको देना चाहता है। ये नहीं कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप इख्तियारी ना हो, यीशु मसीह चाहता है कि आप इख्तियारी हो जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये भी चाहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। जो शख्स चाहता है कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार मिल जाए, और वो इख्तियार यही है कि तुम सांप और बिच्छू को कुचल डालो और इब्लीस की तमाम कुव्वत पर गालिब आओ। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है, अपना वारिस दुनिया के लिए दिया है कि दुनिया बच जाए, दुनिया शिफा पा जाए, दुनिया नजात में दाखिल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी आज तक लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं, रूह को हासिल किया है, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा है। गुनाह की ज़िंदगी में उन्हें लुत्फ़ आता है और उसी गुनाह में रहते हैं। हर वक्त डिप्रेशन, हर वक्त घर में गाली गलौच, हर वक्त उसकी बात कर लो, उसकी बात कर लो। लोगों के मामलात में लोगों को बहुत एंजॉयमेंट मिलती है। दुनिया की बातें करना शुरू हो जाओ, लोग 2-2, 4-4 घंटे आपसे करते रहेंगे, लेकिन जहाँ इबादत की बात आ जाए या कलाम की बात आ जाए, तो बाजी छेती कर लो, सानू टाइम हो, बाजी छेती करो, साढ़े को टाइम नहीं इन्ना है, टाइम ज़्यादा हो रहा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद का इख्तियार हासिल करें, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, खुदावंद के कदमों में झुकना पड़ता है। ऐसे खुदा किसी को इख्तियार नहीं दे देता है। अगर आप इख्तियार पाना चाहते हैं तो खुदा के हुक्मों पर अमल करना सीखें, खुदा के साथ वफादार हो जाए, और ताकि खुदा भी आपके साथ वफादार हो जाए। खुदा चाहता है कि आप मेरे साथ इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करें। आपको खुदावंद यीशु मसीह इख्तियार देना चाहता है, और जब वो इख्तियार देता है तो कोई छीन सकता है? यीशु मसीह देना चाहता है, लेकिन इब्लीस ने ऐसा लोगों के ज़हनों को टॉर्चर करके रखा है, जितना मर्जी वो कलाम पढ़ ले या सुन ले, अमल ज़ीरो। अमल क्या है? उनके अंदर ज़ीरो है। जितना मर्जी वो कलाम पढ़ जाए, सुनते जाए, लेकिन अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे खुदा के लोग हैं जिन्होंने खुदा को चुना और खुदा की खिदमत करना शुरू कर दी, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ग्रेट होती है तो वो खुदा से पीछे हट जाते हैं, वो रुख मोड़ देते हैं। क्यों मोड़ देते हैं? इस वजह से कि हम
ऐसी खिदमत को क्या करे कि हमारी मुश्किलातें नहीं जा रही, हमारी परेशानियां नहीं जा रही। हम ऐसी खिदमत कहाँ से करें और कैसे करें? लोग जो हैं वो खुदावंद से फिर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अगर मुश्किलातों की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बीमारियों की वजह से लोग खुदावंद का पीछा छोड़ देते हैं और खुदा की खिदमत नहीं करते हैं, तो क्या वो लोग बीमार नहीं होंगे? क्या वो लोग बीमार नहीं होंगे? नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? क्या उन पे मौत नहीं आनी? जो खुदा का नाम नहीं भी लेते उनके ऊपर भी मुश्किलातें हैं, उनके ऊपर भी परेशानियां हैं, उनकी भी मुश्किलातें बहुत ज़्यादा हैं। अगर खुदा का नाम लेंगे तो उन मुश्किलातों को आपको फेस तो आप करेंगे, लेकिन हंसते हंसते। मुश्किलातें आएंगी लेकिन आपको फील नहीं होगा कि मुश्किलातें आई हैं। हंसते हंसते वो वक़्त आपका गुजर जाएगा और खुदावंद का तसल्ली और इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में भरता चला जाएगा। अगर कोई नहीं भी खुदा का काम करता तो कोई बात नहीं, ना करे। खुदा तो हर फर्दा बशर पर मेहरबान है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितनी बहनें बैठी हैं और खुदावंद ने यहाँ पे लोगों को चुना, लोग मेरी खिदमत करें, ठीक है। एक ने नहीं की, चुने हुए ने नहीं की, तो जो साथ बैठी है वो बिल्कुल नालायक है। खुदा ने उन्हें फाड़ के क्या चल तू कर। खुदा तो दिलो गुत्तों को जांचता है ना। खुदा ये तो नहीं देखता कि ये बड़ी पढ़ी लिखी है, ये बड़ी इंटेलिजेंट है, या मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है। नहीं, दो लोग यहाँ पे बैठे हैं और खुदा ने एक को चुना, उसने खिदमत को शुरू तो किया लेकिन अंजाम नहीं दिया। फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसके साथ जो बहुत निकम्मी बहन है, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसके पास, खुदा ने उसे अपने जलाल में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदा ने दिलों को देखा है और खुदा दुनिया के नकम्मों को, हकीरों को चुन लेता है ताकि इख्तियार वालों को रद्द कर दे। जो लोग समझते हैं कि हमारे बगैर हैकल नहीं चल सकती, खुदा उनको हकीर कर देता है। और जो लोग बेवकूफ़ होते हैं और लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो वैसे हैं, खुदा उनको सरफराज कर देता है। खुदा उन्हें अपना इख्तियार दे देता है। क्यों दे देता है? कि उन्होंने पूरी बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ नहीं किया है। उन्होंने जाना है कि यीशु ही कुदरत वाला खुदा है और यीशु ही सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। और इसी तरह से जब लोग बहुत ज़्यादा कलाम पढ़ते रहते हैं, उन्होंने आप नहीं समझ आती कि मैं की कहा से। इसीलिए 5 बातें अकल की पढ़ लो। यीशु मसीह का नाम ही ऐसा कुदरत वाला है। और इस बात को आज के बाद जहन में रख लो कि जो भी आप दुआ करोगे और यीशु मसीह के नाम से मांगोगे बाप से, तो बाप आपको फ्याजी के साथ नवाज देगा यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह का नाम ये नहीं कि अच्छा यीशु दे दे, नहीं, ऐसे नहीं। पूरा ईमान, पूरा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। तब यीशु मसीह के नाम से जो चाहो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। जो चाहोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन आपके काम जो हैं वो मसीही नहीं हैं, यीशु मसीह के मुआफिक नहीं है, उस वक्त खुदा हमारी नहीं सुनता है। और जो लोग बड़ी दुआ करते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती, वो जान ले कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही उनकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से खुदावंद उनकी दुआ को रद्द कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह तो हर फर्दा बशर से मोहब्बत रखता है और चाहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दूँ। खुदावंद यीशु मसीह हमें अपना इख्तियार देना चाहते हैं, लेकिन हर फर्दा बशर को ही देना चाहते हैं। लेकिन चंद लोग होंगे जो उसका इख्तियार हासिल करेंगे और आसमानी बादशाह में दाखिल होंगे। क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी पड़ी हर शख्स को, जब कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो चर्च में आ गए, जब कोई मुश्किल हो गई तो खुदा से लोगों से दुआ करवा ली, बाजी बल्ले 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 मैं बड़ा खुश अपनी जिंदगी।
मैं अपने घर बहुत दुआ कर लेना हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे नहीं होता। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा घर इबादत का घर है। मेरा घर, अब घर तब बनता है जब उसमें लोग रहते हैं, उससे पहले वो एक मकान है, लेकिन जब उसमें बसेरा हो जाता है तो वो घर बन जाता है। तो खुदा खुद कहता है कि मेरा घर इबादत का घर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदावन अपने घर में मौजूद रहता है, उसका तख्त वहाँ पे रहता है, और जब भी कोई शख्स खुदा के हजूर किसी भी वक्त आकर क्रियासारी करता है तो खुदा उसकी दुआ को सुन लेता है। खुदा का घर इबादत का घर है, इस वजह से खुदा लोगों को बरकत भी देता है, और जो लोग खुदा की निगाह में कामिल हो जाते हैं उन्हें इख्तियारी बना देता है। खुदा उन्हें इख्तियारी बना देता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, और तुम ये काम करोगे, तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओगे, तुम बदरूहों को निकालोगे, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो चंगाई पाएंगे, वो शिफा पा जाएंगे। यीशु मसीह ये वाला अख्तियार अपने लोगों को देना चाहता है, और जो लोग चाहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह का इख्तियार हासिल करें, इस घमंड में ना रहें कि मैं घर में दुआ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मेरी रब सुन रहा है, ऐसे नहीं होता। अगर हम मिसाल एक आपको ना सीधी सी बात समझाना चाहूँगी, मिसाल के तौर पर ये बहन यहाँ पे बैठी, इनका 7 घर है, इनका 7 घर है, तो अगर इनके घर में कोई इनके अपने ना आए, जो इनके बहुत ज़्यादा करीब है, वो ना इनके घर में जाएं, तो ये जाती रहें, तो एक दिन इनके ज़हन में आ नहीं जाएगा, बाजी आएगा ना, मैं क्यों जानी, वो आते नहीं मेरे घर। ऐसे ही है, ऐसे ही यीशु मसीह है, ऐसे ही यीशु मसीह है। जो लोग घर में दुआ करते रहते हैं तो समझते हैं कि हम सब कुछ हासिल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। खुदा यीशु मसीह ने कहना कि तो मेरे घर से तो आंधी नहीं, आंदा नहीं, मैं क्यों आऊँ। ये हकीकत बात है। जब तक हम खुदा की हैकल में खुदा के पास नहीं जाते, खुदा भी हमारे घरों में नहीं जाता है। और खुदा पता कैसे जाता है, ये भी नहीं आपको पता कैसे जाता है बोले खुदा। कोई समझदार है तो बता दो। हमारे घरों में आता है तो उसके साथ बरकत को लेके आता है। कौन आता है? बरकतों को लेके आता है। कौन आता है? जब खुदावंद आता है हमारे घर। खुदावन आता है। कैसे आता है खुदावन? जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम बड़ी आज से बड़ी यकीन ये भी गलत है। अपने खादमों के जरिए बाजी के लिए जोरदार तालियां। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जहाँ मेरा खादम है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो खुदावन तब लोगों के घरों में जाता है जब खादम जाते हैं। अदरवाइज जितना मर्जी आप ललकारते रहे, जब तक खादम नहीं जाएगा खुदावन यीशु मसीह नहीं जाएगा। इस बात को भी याद रखें। जब तक नर्स है ना तो कॉल नहीं ना करती डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं इलाज नहीं आंदा ऑपरेशन करनी, नर्स ने पहले सारा अमला तैयार करना होता है, सारा ऑपरेशन थिएटर तैयार करना होता है, फिर वो डॉक्टर को कॉल करते हैं कि आप आ जाएं जी, अब ऑपरेट तैयार है। इसी तरह खादम जब जाता है तो वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे लोगों के घर आया हूँ, आज इन्हें बरकत दे। खादम के ज़रिए बरकत आती है। जब खादम घर में आता है तब बरकतें आती है। खादम ही दुआ करता है तो बंधन टूटते हैं, खादम ही दुआ करता है तो लोग बहाल होते हैं। और जब लोग खादम के साथ वफादार हैं तो फिर वो शिफायत करता है, तो यीशु मसीह उस शख्स को भी इख्तियारी बना देता है। इस बात को याद रखिएगा, खादम के साथ ही सारी बरकतें घर में आती हैं। अदरवाइज इब्लीस ने कहा कि मुझे सजदा कर, मैं दुनिया की तमाम सल्तने, तमाम ऐशो इशरत, तमाम मालो दौलत तुझे दे दूँगा। तो जो घर में बैठ के सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो समझते हैं कि साढ़े को पैसा वादो अरे खुदा ही दे रहे। इस बात को भी जांच ले, खुदा दे रहा है तो खुदा के काम तो नहीं ना आ रहे आपका पैसा। जब खुदा देता है
तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलता है। और खुदा कैसे देता है? खुदा जब आप खुदा के काम में अपना पैसा लगाते हैं, खुदा तब आपके रुपये पैसे में बरकत को लेके आता है। और आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, खुदा उसमें ब्लेसिंग को ले आता है, बरकत। और ये मेरे ज़ाती तजर्बे भी हैं, ये मेरे ज़ाती तजर्बे भी हैं। जब कोई किसी तरीके का भी आपको इख्तियार चाहिए ना, अगर आपको पैसों का इख्तियार चाहिए तो खुदा के साथ पैसों को शेयर करना शुरू कर दे। खुदा कोई कामों में पैसा लगाना शुरू कर दे, खुदा आपको पैसे में इख्तियारी बना देगा, इतनी मालो दौलत देगा कि आपको रखने में जगह कम होगी। अगर आप उल्ट उसकी नेमतें बरकतें चाहते हैं कि खुदा हमें दे, तो कलाम में हक पर अमल करना शुरू कर दें। तो यीशु मसीह को जब आप पसंद आ जाएंगे तो खुदा यीशु मसीह आपको इख्तियारी बना देगा। फिर आपको खपना नहीं पड़ेगा। फिर आप हैकल में या घर में जहाँ भी यीशु मसीह के साथ दुआ करेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके साथ हो जाएगा। तो जो जो आप चाहेंगे खुदा यीशु मसीह वो सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। और इसको कहते हैं इख्तियार, कि मैंने दुआ की और मैंने यीशु मसीह को अपने पास पाया। और ऐसे ऐसे इब्लीसी ताकतें मुझे तंग कर रही थी, ऐसा मेरा मामला था, ऐसी मैं बीमारी में थी या था। तो खुदावंद यीशु मसीह को जब मैंने पुकारा रूह से, सच्चाई से, वो मेरे पास आ गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी मदद की, मुझे इख्तियार बख्शा। और इस तरीके से मुझे दुआ करनी सिखाई कि ऐसी इन इब्लीसी ताकतों के लिए दुआ करो, ऐसे से हुक्म दो। तो मैंने ऐसे ही हुक्म दिया तो वो चली गई। इसको कहते हैं इख्तियार। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदावंद इख्तियार दे तो अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, क्या ऐसा कोई काम हमने किया है कि खुदावंद हमें इख्तियार बख्शे। हम अपने घरों के मामला से बाहर आएंगे तो इख्तियार देंगे ना। कराते मामले ही बहुत ज़्यादा वो नहीं ख़त्म होने, बंदा ख़त्म। हाँ देखो, घर में बुढ़ापा भी आ जाए ना, फिर भी उस शख्स की ज़रूरत होती है ना, होती है। बंदा बूढ़ा भी हो जाए, फैमिली को उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसी तरह यीशु मसीह को भी आपकी ज़रूरत है। यीशु मसीह चाहता है कि इंसान जो मैंने तख्लीक किया है, मैंने बनाया है, वो पहला दर्जा मुझे दे, मेरे कामों को करे। जब हम खुदा यीशु मसीह के कामों को करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो। यीशु मसीह आपको ये हुक्म नहीं दे रहे कि बस ख़त्म ही कर दो। यीशु मसीह ने कहा कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, अपने सारे काम करके मुझे भी टाइम दे दे। यीशु मसीह ये चाहता है। और फिर देखिएगा कि खुदावंद आपको कैसा इख्तियार बख्शता है और आपके घराने की जो बरकतें हैं वो किस तरीके से बढ़ती हैं। आपको खुद मालूम नहीं होगा कि आप सोए हुए होंगे तो खुदावंद की बरकतें आपके घर में बरसना शुरू हो जाएंगी। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि मैं सोई हुई हूँ तो मैं दुआ करके सो जाऊँ कि खुदावंद मुझे इन चीज़ों की हाजत है। तो मुझे खुद नहीं पता होता, मैं सुबह उठती हूँ तो वो ढेरों ढेर बरकतों को नासल कर देता है। और ये सब कुछ अजीज़ों तब होता है जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, फिर वो हमें इख्तियार बख्शता है। और जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को जैसे अपने बाप को कहते हैं ना, ऐसे ही हमारा आसमानी बाप है। जब हम उसे भी ऐसे इख्तियार के साथ कहते हैं, अपने बाप का भी इख्तियार के साथ कहते हैं, मुझे ये चाहिए पापा, मुझे चाहिए अब्बू जी, मुझे चाहिए ये चीज़, कहते हैं ना, तो वो लेके देते हैं ना। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है। जब हम उसके साथ वफादार हैं, उसके कहनों पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर दौड़ते हैं, तो हम सिर्फ कहते हैं तो वो तो खुद चाहता है कि मैं तमाम दुनिया की बरकतें और नेमतें तुम्हें अता करूँ। वो चाहता है, खुदा ये चाहता है कि मैं हर तरह का इख्तियार अपने लोगों को दे दूँ। लेकिन कमी आज हमारी दुआ में है, कमी आज हमारी वफादारी में है, कमी आज हमारे ईमान में है। तो इस तरह का ईमान नहीं, इस तरह की वफादारी नहीं है कि हम खुदा को पसंद करें। अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि हम कहाँ कहाँ से गिरे हैं और क्यों गिरे पड़े हैं। इब्लीस नहीं चाहता है कि आप दुआ करें, इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा के काम करें, इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा के घर में जाएं। उस इब्लीसी ताकतों पे जब आप गालिब आ जाएंगे, फिर ये इख्तियार, तमाम इख्तियार जो है आपके हाथ में आ जाएंगे, आपके लबों पर होंगे,
आपने सिर्फ मुंह हिलाना है और खुदावंद ने कर देना है। आप मुंह हिलाएंगे और करना शुरू हो जाएगा। अपनी जिंदगियों पे गौर करें। खुदा चाहता है, खुदा ने आपको बेटियां और बेटे कह कर किया है, अपनी तरफ बुलाया है। ये नहीं कहा कि तू किसी और की बेटी है या तू किसी और का बेटा है, मेरी बात सुन। ऐसे नहीं खुदा ने कहा। खुदा ने कहा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। खुदा ये कहता है हमें, और इस बात को याद रखें कि हम खुदा की बेटियां ही बेटियां हैं और बेटे ही बेटे हैं। खुदा ने जो आसमान का बादशाह है, हम उसकी शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं और वो हमें इख्तियार अपना देना चाहता है। और जब वो हमें इख्तियार अपना देना चाहता है तो हम भी अपने आप को उस लायक कर दें कि खुदा के इख्तियार को हासिल करें और तमाम तरह की नेमतें बरकतें खुदावंद अपने लोगों को अता करे। क्योंकि जब बाप बादशाह होता है तो उसके बच्चे कोई हकीर थोड़ी होते हैं। जब आपका बाप बादशाह है, सल्तनतों का मालिक है, मालो दौलत उसके कदमों के नीचे है, तो आप किस चीज़ की नेमतों के मोहताज रह सकते हो। लेकिन अपने ईमान को बढ़ाएं, अपने कामों को देखें कि हम कैसे चलते हैं, खुदा के हुक्म पर अमल करना शुरू कर दें तो आसमानी बरकतें जो हैं आपके घर में बरसना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो खुदा ने इस कलाम के एवज़ आपको बढ़ाई और बड़ी बरकत अता फरमाई। सब कहें आमीन। आमीन। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, सब दुआ करेंगे। आज ऐसी दुआ कीजिएगा जो खुदा को पसंद है। मौसम इतना गर्म नहीं है, मौसम ठंडा है। दुआ दिल खोल के करें। दुआ करनी है, अपने दिल खोल कर करनी है ताकि खुदावंद आपको आसमानी बरकतों से नवाजे। खुदा को पसंद आए कि आज मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने दिल खोल कर मुझे पुकारा है। आज मैं इसे अपना इख्तियार दूंगा, आज मैं इसे इख्तियारी बना दूंगा। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। खुदावंद चाहता है कि मैं अपनी बेटियों और बेटों को बरकत अता करूं। वो वादों का सच्चा खुदावंद, वो अपने लोगों को किसी नेमत का मोहताज नहीं होता। उसके लोग किसी नेमत का मोहताज होते ही नहीं। कोई नहाय तस्लीम और कातरे मुतले है।
पापा